السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے نیوز بلیٹن حیدرآباد ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد فخر الدین۔ سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ بھر میں سابق پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی منائی گئی جینتی، سرکردہ شخصیات نے عظیم قائد کو پیش کیا خراج۔ تلنگانہ اسمبلی میں کانگریس ایم ایل ایز نے دوسرے دن بھی کیا احتجاج، اجلاس میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا ٹی آر ایس نے کانگریس پر لگایا الزام۔ اور جاریہ ماہ کی 22 تاریخ سے چومہلا پیلس میں منعقد ہوگا 6 روزہ جشن خسرو پروگرام، چیف منسٹر کے سی آر کریں گے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ سابق پرائم منسٹر آن جہانی اندرا گاندھی کی 97ویں یوم برسی کے موقع پر تلنگانہ کانگریس پارٹی چیف پونالا لکشمیا کے علاوہ سدھاکر ریڈی، محمد علی شبیر و دیگر نے انہیں خراج پیش کیا۔ اس موقع پر ان قائدین نے حیدرآباد کے نیکلیس روڈ پر واقع مجسمہ اندرا گاندھی پر پہنچ کر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ اعلیٰ قائدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے اندرا گاندھی نے بہت کام کیا ہے، ہم ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ گاندھی بھون میں بھی تلنگانہ کانگریس پارٹی کے قائدین نے ہندوستان کی پہلی خاتون پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی برتھ اینیورسری منائی۔ اس موقع پر قائدین نے اندرا گاندھی کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ تلنگانہ پی سی سی چیف پونالا لکشمیا نے بتایا کہ ہندوستان میں گرین ریولیوشن لانے کا سہرا اندرا گاندھی کے سر جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں کے سبب آج زرعی شعبے میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے آزاد کرانے میں بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 97वीं सालगिरह पर यहां गांधी भवन में उन्हें श्रद्धांजलि देने का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर टीपीसीसी के प्रेसिडेंट श्री पोन्नाला लक्ष्मैया जी के अलावा कांग्रेस के सीनियर नेताओं के आने की भी बातचीत चल रही है। حیدرآباد میں واقع اندرا بھون میں بھی سیما آندھرا کے کانگریس قائدین نے اندرا گاندھی کی 97ویں یوم برسی کے موقع پر سینئر قائدین نے ملک کی آزادی کے بعد ہندوستان کی ترقی کے لیے اندرا گاندھی کی جانب سے کی گئی خدمات کو یاد کیا۔ کانگریس قائد پدما راجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 14 سال ہندوستان پر حکومت کرنے والی عظیم قائد اندرا گاندھی نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ بینکنگ کے شعبے کو بھی ترقی دینے کے مقصد سے انہوں نے خانگی بینکوں کو حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا۔ ان کی اس عظیم کارنامے کو ہندوستان کی عوام کبھی نہیں فراموش کر سکتی۔ The Andhra Pradesh Congress Committee has celebrated the birthday celebrations of Srimati late Prime Minister Srimati Indira Gandhi. We have remembered the services rendered by Srimati Indira Gandhi in her tenure of nearing 16 years as Prime Minister of this country. She has taken so many reforms like Green Revolution for food security of this nation. At the time of her regime, actually the food grains deficiency was very much abundant. She has taken initially to provide food to the entire country, for which she has started this green revolution. Today we are self-sufficient so far as food grains are concerned because of her vision. Another important thing, she has always strived hard to uplift the Dalits and Girijans and the backward classes, and especially the bank's nationalization and 20-point economic program, and also the abolition of the privy purses were some of the important events occurred in her tenure.
and she has rendered so many things for this nation. She has sacrificed her life. Today, Andhra Pradesh Congress Committee has celebrated. तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस पार्टी के एमएलएस के एहतजाज के सबब स्पीकर मधुसूदन चारी ने इजलास की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। असेंबली में अकाउंट्स पर मुबाहिसा हो रहा था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के एमएलएस ने स्पीकर पोडियम के करीब पहुंचकर मुखालिफ हुकूमत नारेबाजी की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के एमएलएस ने रियासती वजीर पोचारम श्रीनिवास राव के बयान के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस पार्टी के एमएलएस ने बताया कि पोचारम श्रीनिवास अकाउंट्स पर तफसीलात फराहम करने के बजाय कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक असेंबली में बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना के एक और वजीर हरीश राव ने असेंबली में कांग्रेस पार्टी के एमएलएस के एहतजाज पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन इजलास की कार्रवाई में सबसे बड़ी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులకి చర్చ చేయడం ఇష్టం లేదు, అసెంబ్లీ నడవడం ఇష్టం. Now question number 96, Minister for Education. Please. అధ్యక్ష క్వశ్చన్ అవర్ కానివ్వండి. క్వశ్చన్ అవర్ క్లోజ్. అధ్యక్ష మీరు గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులకి చర్చ చేయడం ఇష్టం లేదు, అసెంబ్లీ నడవడం ఇష్టం. Now question number. नाजरीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। साबिक रियासती वजीर डी.के. अरुणा ने असेंबली में मीडिया पॉइंट से खिताब करते हुए तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर आसरा स्कीम के नाम पर गरीब और उम्र रसीदा अफराद को परेशान कर रहे हैं। आसरा स्कीम के तहत कई उम्र रसीदा अफराद को पेंशन बंद कर दिया गया है। इस तरह हकदारों को इनके हक से महरूम किया जा रहा है, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर जिले महबूब नगर में एक उम्र रसीदा खातून दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। डी.के. अरुणा ने चीफ मिनिस्टर से अपने रवैये में तब्दीली लाने की मांग की। उन्होंने तमाम मुस्तहिक अफराद को पेंशन देने का हुकूमत से मुतालिबा किया। हैदरगुड़ा एनएसएस प्रेस क्लब पर रैल मजदूर यूनियन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुलाजमीन के कायदीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा किया। इसके अलावा इनके रिटायरमेंट की हद उम्र में इजाफे का भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालिबा किया। मुलाजमीन का कहना है कि रोज बरोज महंगाई में काफी इजाफा होता ही जा रहा है, बावजूद इसके तनख्वाहों में ना के बराबर इजाफा हो रहा है, जिस पर अपना और अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। यूनियन जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इनके मसाइल पर तवज्जो नहीं देती है तो बहुत जल्द मुस्तकबिल का लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। रेल मजदूर यूनियन सिकंदराबाद डिविजनल सेक्रेटरी का काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आज के सुबह दिन में तेलंगाना स्टेट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के समस्या क्या है और 7th पे कमीशन में क्या क्या इनको बेनिफिट्स देना है बोल के पता करने को आप लोगों का क्या क्या भिन्न भाई बोल के पता करने को उन्होंने बुलाया था। तो हमारे रेल मजदूर यूनियन साउथ सेंट्रल रेलवे डिविजनल जोनल सेक्रेटरी साहब श्री तरंगट साहब और साथ में और 6 जोनल के जनरल सेक्रेटरी साहब सब मिलके हम लोग उधर गए थे। उनपे वहाँ पे जो है जहाँ जहाँ की एम्प्लॉयज क्या बेनिफिट सुविधा देने का है और क्या क्या लॉस हो गया और क्या बेनिफिट बढ़ाना है और कितना तनख्वाह देना है। अपने लिए एक अलग वेज बोर्ड की मांग करते हुए आज यहाँ साउथ सेंट्रल रेलवे के रेल मजदूर यूनियन के लोग आए हैं, जिन्होंने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।
किसानों की खुदकुशियों के मामले पर अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने कहा कि एक जानिब रियासत में बरखी की किल्लत के सबब किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, बावजूद इसके टीआरएस हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो देने से खातिर है। तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में बरखी की किल्लत के सबब कई किसानों ने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया है, जबकि टीआरएस हुकूमत अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में दुगना इजाफा करने पर गौर कर रही है। वाज़ेह रहे कि हर माह अवामी नुमाइंदों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। टीआरएस हुकूमत इस मुआवजे को दुगना करते हुए इसे 2 लाख करने का फैसला लिया है। Shaming the farmers' suicide by announcing we are expecting he will announce some ex gratia for the farmers, but he is announcing doubling the salary of MLAs. Really, I am shameful to be a MLA here in this assembly. Later we have to go to several places, we have to investigate, we have to do a lot of things. Definitely it has to be. There is nothing wrong in it. Ultimately for achieving the goals of the government. It is not the salary, it is the TAs and DAs and other office assistants allowances. आज इंटरनेशनल वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया। इस मौके पर बस्ती विकास मंच की जानिब से इंदिरा पार्क पर एक धरना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बस्ती विकास मंच की सदर आलिया खान ने अपने खिताब में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मगर शहर के कई मकानात में बैतुल खुला न होने से उन्हें काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस में खवातीन के लिए बैतुल खुला न होने से कई लड़कियां अपनी तालीम को अधूरी छोड़ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो लड़कियों और खवातीन को भी नजर में रखते हुए हर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में बैतुल खुला तामीर करें। And I am advisor to Basti Vikas Manch, and Basti Vikas Manch is operational in 60 slums of Hyderabad, primarily working on the water and sanitation issues. We have been working on Mohammad Nagar toilet issue, community toilet issues. 4 years we have given the representations to the respective departments. Right from the lowest level to the highest officials we have given the representations. There are only commitments but no action is taking place at the present. So our demand as a community is that first thing is toilet construction at Mohammad Nagar with all the primary facilities, water and cleanliness. And if this is not being, achieved, then we will defecate inside the GHMC offices and nobody can stop us. This is an ultimatum to the GHMC officials, to the Chief Minister of Hyderabad, Mr. KCR, Telangana. So I am just requesting him to take this issue as a priority and give orders to your officials to act on this at the earliest. Women are defecating inside their houses. It is like we are getting violation of right to dignity of women. This is right to sanitation is a constitutional law which is being violated in every slum of Hyderabad. कई सालों से म्युनिसिपल ऑफिस और गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंटों को बहुत लेटर दिए हमारे हैदराबाद में स्लम एरिया। आज दुनिया भर में वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है, जिसके मौके पर आज यहाँ इंदिरा पार्क में लोगों ने धरना किया है कि उनके पास उनके घरों में टॉयलेट्स की कमी है और कोई भी अधिकारी उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सीएम ऑफिस के आगे जाके प्रोटेस्ट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं एक और मुख्तसर सा वक्फा। अतिथि देव इंग्लैंड की कैथरीन के साथ घटी ये घटना बहुत कुछ बयान करती है। प्रेस क्लब पर मुजफ्फर अली सोफी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 22 मार्च से 24 मार्च तक एक बैनुल अक़वामी 6 रोजा जश्न खुसरू प्रोग्राम चौमहला पैलेस पर मुनक्किद होने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस चिश्तिया के जेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, सज्जादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कौंसिल जनरल ईरान हसन नूरियान के अलावा दीगर मेहमान शिरकत करेंगे। ने कहा कि ये होना चाहिए और मैं जब ये दावतनामे भेज रहा था इस साल के तो 1-2 जगह से बहुत ही प्रोमिनेंट
यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने भी हमको ये कहा कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये करना चाहिए, और प्रोफेसर वगैरह हजरात की अगर कोई इसमें ताउन चाहिए, उनकी मदद चाहिए, रहबरी चाहिए सेमिनार वगैरह के लिए, तो आज देख रहे हैं कि हमारे बीच में एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल मुख्तदर साहब, और जैसा कि बता रहे हैं कि हर क्वार्टर से ये रिक्वेस्ट थी, तो हम उसको ये दोहरा रहे हैं। इंशाल्लाह हर साल ये हम करना चाहेंगे। तो अब ये इवेंट बहुत ज़्यादा वाइड और डीप हो गया है। इसमें जैसा कि लास्ट ईयर हमने 3 दिन का किया था, इस साल भी 3 दिन का ही कर रहे हैं। थोड़ा सा तरतीब इसमें ये चेंज है कि लुकिंग इनटू द डिग्नेटरीज हु फ्लाइंग इन फ्रॉम अदर प्लेसेस, अदर कंट्रीज, अदर सिटीज़, हम ये सोचे कि सैटरडे इसको रंगे खुसरो महफिल करते, जो हैज़ गॉट द वन ऑफ द मेन प्रोग्राम्स हमारा है जो सूफी म्यूज़िक, सूफी कॉन्सर्ट का है। तो इस बार हम ये चौमेला पैलेस में 22 नवंबर को 22 नवंबर 22 से लेकर 24 तक जश्न खुसरो इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल हैदराबाद में कंडक्ट की जा रही है। इस सूफी फेस्टिवल में वर्ल्ड फेमस सूफी सिंगर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अबरार के साथ सुजाता, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। गौड़ा तबके की इजारादारी के खिलाफ आज मजदूर तंजीम के कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया। इस मौके पर तंजीम के कायदीन ने बताया कि मजदूरों के साथ हमेशा नाइंसाफी हो रही है, उन्हें वक्त पर मजदूरी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें रोजाना जो उजरत देना है वो नहीं दी जा रही है, जिसके सबब मजदूर तबके के अफराद को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो हैदराबाद, सिकंदराबाद के और रंगारेड्डी जिला ये एरिया के सोसाइटियाँ हैं, सिंधी के दुकान है, तो सिंधी के दुकानों के अंदर ये लाइसेंस दिए सो है, तो प्रॉपर वालों को जो कार्य क्षेत्र परिधि में रहते ना, तो लोगों को जीने के लिए उसका उपाधि के लिए ये गवर्नमेंट अपने को दिए सो है। तो इसलिए ये देने के बाद जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स है, इससे पहले थे, तो लोग ये गरीबों को पहुंचने के नहीं पहुंचना नहीं दे रहे, तो बहुत प्रॉफिट आ रहे इसके अंदर। तो ये गवर्नमेंट दे रहे थे, क्या बात है बोले तो हर एक गरीबों को, गाउड्स के लिए, वृत्तिदारों के लिए काम करते हैं ना, तो जाड़ा छिड़ के। लंदन दौरे के अख्तिताम के बाद MP कविता ने पहली मरतबा अपने हल्के पार्लियामेंट निजामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर TRS पार्टी कायदीन ने और कारकुनों ने कविता का वालिहाना इस्तकबाल किया। कविता ने निजामाबाद मुस्तकिल पर पार्टी होम्योपैथी क्लिनिक का इफ्तिताह किया। बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि एलोपैथिक के मुकाबले में होम्योपैथिक में बेहतर इलाज मौजूद है, इससे किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तवील वक्फे के अमराज का भी होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है। उन्होंने अवाम से होम्योपैथिक के इलाज पर तवज्जो देने की मांग की। जापानी तंजीम एकेबाना की जानिब से बेगमपेट में वाक़ हरिता प्लाजा में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ये तंजीम हिंदुस्तान में कायम हुए 16 साल मुकम्मल हो गए हैं। 16वीं एनिवर्सरी के मौके पर इस तंजीम ने एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस मंचू लक्ष्मी के अलावा एकेबाना की टीचर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्कशॉप भी मुनक्किद हुआ था। उन्होंने बताया कि एकेबाना के जरिए हासिल होने वाली आमदनी को यतीम खानों में खर्च किया जाएगा। Bringing the nature into our house is something what we learn in Ikebana, and in this concrete jungle, the cities are becoming concrete jungle, and at our homes, if we have a small Ikebana arrangement with those fresh flowers, we feel rejuvenated. This is a beautiful art like music, dance and all. So Ikebana is also a nice art which is originated in Japan. Ikebana International has formed about 16 years back, and today we are celebrating the Charter Day. On this occasion, today we have released a book called Pushpatoranam with 34 Ikebana arrangement pictures, and 34 people had made these arrangements with local materials. So we are celebrated releasing this book today amongst all the people. Responsible women ikkada edo double ichi gaani idi valla స్వయం ఇంట్రెస్ట్ తోటి పువ్వుల గురించి నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు. సో
ఇలాంటి వాళ్ళని మంచి చేయగలుగుతారు కూడా, బికాస్ దే టేక్ సచ్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ టు అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. I think it's a beautiful initiative and they've promised also that వాళ్ళు ఎంత వీలైతే అన్ని ప్లాంట్స్ వైజాగ్కి పంపిస్తారని. And I think it's మనకు అనిపించింది మనం చెయ్యాలి, ఇది ఒక్కటే అని కాదు, ఏది తోచితే అది చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది. And I'm just glad that they committed to sending. Ikebana International Hyderabad chapter, this is the 16th anniversary and we aim at promoting the Japanese art of Ikebana and spreading the awareness of nature in men, women, children, everyone. It's a very pleasant and soothing art form. We've done a nice exhibition today and we also have launched a book by the members. It's an Ikebana notebook with about 34. इख्तिताम से कबल डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में साबिक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मनाई गई जयंती। सरकर्दा शख्सियात ने अजीम कायद को पेश किया खराज। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस एमएलए ने दूसरे दिन भी किया एहतजाज। इजलास में रुकावटें खड़ी करने का टीआरएस ने कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। और जारिया माह की 22 तारीख से चौ महिला पैलेस में मुनक्किद होगा 6 रोजा जश्न खुसरू प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर केसीआर होंगे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज। खबर है मुल्क की।